am learning through my mistakes. So let's take that initiative to make mistakes. Who has stopped us from making mistakes? Exactly. And if you don't make mistake, how will you learn? करेक्ट. वैसे वो लास्ट बेंचर्स आजकल ज्यादा ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट बेंचर्स से. Today there is nothing called a first bench or last Yeah. bench. Every bench is a bench. एवरी बेंच वेरी नाइस. टैगलाइन बन गया, पंच लाइन बन गया. एवरी बेंच इज अ बेंच. मेरे बाजू वाले घर के लड़के को 85 मिलेगा तो मेरे को 90 मिलना ही पड़ेगा. दिस इज प्रेशर. या साइकोलॉजिकली आप डायरेक्टली बोलो या ना बोलो, साइकोलॉजिकली इट्स अ प्रेशर. स्टूडेंट्स जो होता है वो कभी कभी रिलेशनशिप में भी पढ़ते हैं. Yeah, this is very very valid point you have brought in and ये आपका सब जगह में मिलेगा. आप IIT IIM में भी जाओगे मिलेगा और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में भी जाओगे. These things are young people are prone to this thing. Relationship तो बनेगा ही बनेगा. Whether it's a final relationship or not doesn't matter. It's a temporary relationship but होगा ही. You cannot stop it. तो उस समय में ब्रेकअप भी होगा. हाँ. झगड़ा ही होगा. फिर उसके बाद आपको लगेगा मैं दारू पीता हूँ. What do you think? Education is important for choosing a career or education is important for our own excellence? To able to take that decision कि मेरे को सर्विस करना है या मैं एंटरप्रेन्योर बनना है. The way you have molded your life. Do you think that if you had no education, would you have been able to Never. do it? It is not possible. Yeah, he'll give him a good job. He'll get into a bank. Probably. What else? In Guwahati, you can get a position, but you'll not get well paid. Then you'll say, my friend is earning double mine. But I always tell students, why take placements? Give placements. जैसे कि कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल है यहाँ का सॉइल ब्रह्मपुत्र के पार, तो यहाँ पे हम लोगों का बिजनेस के लिए भी फर्टाइल बनाना होगा নৰ্থ ইষ্টকো. পডকাষ্টৰ এই নতুন খণ্ডটোলৈ মই কৃষ্ণাক্ষী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ. আজি এই পডকাষ্টটো অকণমান সুকীয়া, অকণমান হয়তো সেইসকল লোকৰ বাবে যিসকল লোকে ভাল এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজ বিচাৰি আছে, যিসকল লোক হয়তো ষ্টুডেণ্টছ, যিসকল লোকে হয়তো অকণমান দুদুল্যমান এটা পৰিস্থিতিত আছে যে মই এইটো ষ্ট্ৰীমত পঢ়িম নে এইটো ষ্ট্ৰীমত পঢ়িম. ইনফেক্ট সেইসকল পিতৃ মাতৃ বা অভিভাৱকসকলৰ বাবেও হয় এই পডকাষ্টটো, যিসকলে এখন ভাল ইউনিভাৰ্চিটি বা এজন ভাল গুৰু বা এজন ভাল শিক্ষকৰ যিখিনি গুণ থাকিব লাগে এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা এখন শিক্ষানুষ্ঠানত হয়তো বিচাৰি ফুৰিছে. আজি এই পডকাষ্টৰ মজিয়াত আমাৰ অতিথি হৈছে প্ৰফেচৰ ববি ৰয়. তেখেত চিফ মাৰ্কেটিং অফিচাৰ হয় কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আৰু তেখেতে 27 বছৰ প্লাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নিজৰ এই ফিল্ডখনত. বহুতো কথা, বহুতো আলাপ হয়তো আমি পডকাষ্টৰ মজিয়াত কৰিছোঁ, যদিও হিন্দীত কৰিছোঁ. আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব, কাৰণ বুজি পাব এইবিলাক কথানো আমি কি পাতিছোঁ, কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে. আৰু ৰিচেণ্টলি প্ৰফেচৰ ববি ৰয়ক ভাৰতবৰ্ষত 10জন বেষ্ট চিফ মাৰ্কেটিং অফিচাৰৰ হিচাপত এজন তেখেত পৰিগণিত হৈ পৰিছে. চ' ব'লক এই পডকাষ্টটো আমি শেষলৈ চাওঁ আৰু এই পডকাষ্টটো কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্টছত জনাব নাপাহৰিব. सो बॉबी रॉय, Yes. कहाँ से है आप? मैं इंडिया से हूँ. नहीं, कौन से इंडिया के इसीलिए कौन से मैं बोल रहा हूँ प्रांत से? इंडिया से हूँ क्योंकि हाँ. इंडिया का ऐसे जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं था. ओके. मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ है पंजाब में. आई डिड माई स्कूलिंग इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना. ओके. उसके बाद मेरा एजुकेशन में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कलकत्ता से किया हूँ, सेंट जेवियर्स कॉलेज से. उसके बाद मैं MBA करने के बाद मेरे को नौकरी करने के लिए निकल पड़ना था और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था अहमदाबाद. ओके. वहाँ से मेरी करियर शुरू हुई और उसके बाद बैंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, पांडिचेरी, हैदराबाद, मोस्टली ऑल प्लेसेस आई हैव बीन टू. It's been a career of about 28 years that I've been working. वाओ, तो इतना वर्सेटाइल आपका कैरियर है, बहुत सारी जगह में आप गए, इनफैक्ट हो ही. तो आप बताइए गुवाहाटी में क्या स्पेशल है जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? गुवाहाटी नहीं, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट ही बोलूँगा. नॉर्थ ईस्ट बोलिए. या नॉर्थ ईस्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. हम लोग का जो परसेप्शन है बाहर के लोगों को, दैट इज अगेन अ डिफरेंट वर्जन. ओके. तो हम यहाँ पे आए थे टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या है. पहले हमको बोला गया था वहाँ मत जाइए, वहाँ पे नक्सलाइट्स है, ओके. वहाँ पे रोज बम गिरते हैं. ऐसा परसेप्शन है बाहर में. बट व्हेन आई केम हियर आई फाउंड इट्स अ वंडरफुल प्लेस. ओके. द ब्यूटी, द नेचर, द क्लाइमेट, द कंडीशंस, आई फेल्ट सो गुड. मेरे को इतना अच्छा लगा कि आज 8 साल हो गए मैं नॉर्थ ईस्ट में घूम रहा हूँ. काजीरंगा यूनिवर्सिटी में. जी, काजीरंगा यूनिवर्सिटी में हूँ अभी.
सो काजीरंगा यूनिवर्सिटी हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेंगे आपके बारे में। जी, वैसे जरूर। आप तो बहुत ऐसे लगते हैं कि स्टूडेंट्स आपसे कांपते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये आपका मेरा एक्सटर्नल वर्जन देख के स्टूडेंट कांपते होंगे शायद, बट वंस दे कम अक्रॉस मी दे लव मी लाइक एनीथिंग। ओके। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स काजीरंगा यूनिवर्सिटी में हैं अभी, वो मेरे को दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ मी, बट दे रेस्पेक्ट मी एंड दे लव मी। कोई भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे पास पहले ही आ जाएंगे, सर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी, दे आर लाइक माई ओन चिल्ड्रन। ऑसम। आपका स्कूलिंग, जैसे कि आपने बोला कि आपका पंजाब में आपने स्कूलिंग किया है, फिर आपने कॉलेज वगैरह कहाँ से कंप्लीट किया? मैंने ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कोलकाता से किया था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने MBA किया था, वहीं कंप्लीट करने के बाद ही मैं इस जॉब स्टार्ट किया। ओके। सो आप वैसे कैरियर के बारे में आप बहुत सारे काउंसलिंग भी देते ही है, तो ऐसा मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइफ में ऐसा हुआ है, जैसे कि अगर कोई साइंस स्ट्रीम से हाई सेकेंडरी मतलब HS पास करके रखा है, तो वो लोग सोचते हैं कि आई शुड गो फॉर द साइंस ओनली, लेकिन बाद में पता चलता है कि आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मुझे आर्ट्स में ही जाना चाहिए। ये जो कन्फ्यूजन है वो कैसे सोचते हैं कि ठीक करना चाहिए स्टूडेंट्स के दिमाग में? देखिए, ये कन्फ्यूजन तो हमारे टाइम में और ज़्यादा था। हमारे टाइम में ऐसा कहा जाता था कि स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट अच्छा है तो साइंस पढ़ेगा, मीडियोकर है तो कॉमर्स पढ़ेगा, एकदम बेकार है तो आर्ट्स पढ़ेगा। हाँ, एकदम। और हमारे पास यही तीन ही ऑप्शन थे। आज टुडे द होल वर्ल्ड हैज ओपनड अप, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, वेदर इन आर्ट्स or science or in commerce, you have wonderful career prospects across. Or as after globalization, things have improved too much. Abhi so there are a lot of people who are guiding, like I am the person who's guiding students. Yeah. In my time, I did not have those facilities, so हमको पढ़ना पड़ता। अगर जो भी हमको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, that was decided by our parents. Today, still parents are a factor in deciding, but the student also has a say. He also thinks. So what happens is हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। मेरे में इंजीनियरिंग का है नहीं, मैं मैथमेटिक्स में 0 हूँ, बट मेरा पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे को इंजीनियरिंग करना पड़े। उस टाइम में होता था कि हाँ इंजीनियरिंग पढ़े, दैट्स वाई स्ट्रेस लेवल यूज टू गो अप। टुडे ऑप्शंस आर ओपन, इवन इफ यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, यू कैन स्टिल डू समथिंग टेक्निकल। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम इन, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही मेरा बुखार आ जाता था, क्योंकि मैं जो था ना, मैंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम में मुझे 92 मिला था 100 आउट ऑफ। तो मेरे मम्मी पापा सोचे कि ये तो साइंस का स्टूडेंट है, दे दिया मुझे साइंस में। वहाँ जाके ट्रिगोनोमेट्री वगैरह सब कुछ मिलके पूरा माथा छकरा गया, एंड देन देयर वाज नॉट एट ऑल अ गुड रिजल्ट इन माई HS। अगेन जैसे कि आपने बोला बेकार स्टूडेंट, जैसे कि आर्ट्स में जाते हैं, मैं आ गई हिस्ट्री ऑनर्स लेके। फिर आई हैड अ गुड कैरियर, मास्टर्स किया 2 सब्जेक्ट्स में, सोशियोलॉजी MSW, एंड देन आई डिड डॉग साइकोलॉजी ऑल्सो। फिर मेरा खुद का बिजनेस मैंने खड़ा किया, फिर आई एम डूइंग पॉडकास्टिंग। सो देखिए, वर्सेटाइल होना चाहिए, है कि नहीं? यू आर मल्टी टैलेंटेड। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, तुम लोग मतलब डरो मत, जस्ट चूज व्हाटएवर यू ऑप्ट टू, है ना? तो पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए इसमें? Now, parents have to they have to be like friends with this child. They cannot be like a dictator. इसको समझना पड़ेगा. But I feel that today's parents are more becoming close to that. आज वो स्टूडेंट्स का इच्छा अनिच्छा को सोच के then they are making the children take a career. और ये अच्छी बात है, क्योंकि अब अगर आप वो 3 इडियट्स के 3 इडियट्स को देखेंगे तो ये ट्रेजेडी वहीं पे से शुरू होता है। ओनली दैट फेलो हु वाज गुड इन एवरीथिंग ही शाइन, अदर पीपल दे आर फोर्स्ड। वो नहीं होना चाहिए। और वो मैं पेरेंट्स को जब काउंसलिंग करता हूँ बताता हूँ, मैं व्हेन स्टूडेंट्स कम टू मी, आई फर्स्ट टू स्पीक टू द स्टूडेंट, अंडरस्टैंड कि क्या उसका क्या पोटेंशियल है, देन आई हैव टू डू बिगर काउंसलिंग विद द पेरेंट्स। क्योंकि इट्स पेरेंट्स दे आर कन्फ्यूज्ड। उनका बाजू वाले घर में वो लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, मतलब मेरे बेटे को इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। माई सन मे नॉट हैव अ पैशन फॉर इंजीनियरिंग, और अगर आप में वो पैशन है ही नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। करेक्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स, व्हाट आर हिज प्लस पॉइंट्स, व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ। इफ मैथमेटिक्स इज अ वीकनेस, व्हाई शुड वी फोर्स हिम इनटू मैथमेटिक्स? लेट अस अंडरस्टैंड। अगर आप वीकनेस को करेक्ट कर सकते हो
That's a wonderful thing. Yeah. Yes, I have been able to given coaching to him, made him feel good about it. That feel good factor आना चाहिए, स्टूडेंट के मन में आना चाहिए. नहीं तो वो अगर आप जैसा पैरानॉइड है मैथमेटिक्स का, वो मैथमेटिक्स क्लास ही नहीं करेगा. Yeah. क्लास में करेगा भी तो सुनेगा नहीं. Exactly. And then he will score a big 0 in his examination. And after scoring that big 0, he will be under tremendous stress. मम्मी पापा को क्या बोलूँगा? In the process, he will lose in next semester also. And by the time he is supposed to pass out, he is a mental wreck. So true. पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हाथ होता है इसमें अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य गठन देने में. जो इम्पोर्टेंस आई थिंक पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो Yes. यहाँ पे आ जाता है एक अच्छा कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज़ करने का टाइम. तो व्हाट यू थिंक, एक अच्छा यूनिवर्सिटी का कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि मुझे वही यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे वहाँ ही पढ़ना है? ये डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स द स्टूडेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू. नॉर्मली इफ़ यू सी इंडिया में अभी भी पेरेंट्स का एक ही मकसद है कि मेरा अगर बेटा हुआ तो इंजीनियरिंग करेगा, बेटी हुआ तो MBBS करेगा. इसके अलावा वो सोचते ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल. But students today, they are specializing in multiple avenues. Some people are doing into design. Some people are going into fashion designing. Some are going into what is something called town planning. मेरे टाइम में सुना नहीं था मैंने. But today lot of avenues are open. And अगर student का interest उस लाइन पे है, the parents need to understand कि मेरा ये लड़का he will shine if he is given that scope. और वो scope हम देते नहीं है normally. बट देना चाहिए. इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट शुड फील गुड कि ये मैं कर रहा हूँ एंड दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर मी एंड आई लाइक इट. एंड दैट फीलिंग, दैट काउंसलिंग हैज़ टू गो टू स्टूडेंट एज वेल एज द पेरेंट्स. दैट्स राइट. तो जैसे कि मैंने पूछा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में तो हम लोग कैसे चूज़ करें कि ये यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको प्लेस किया है, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे क्या? देखिए, आप कैसे यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है मैं क्या करना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ फ्यू एग्जाम्पल कि मैं आई वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल. अगर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ तो मेरे को क्या क्या देखना पड़ेगा. यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, वेदर फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट रिकॉग्नाइज्ड ऑन नॉट. फर्स्ट थिंग, टुडे यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन थ्रू UGC, AICTE, दिस इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी. तो अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो उस यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ क्या है. इज इंजीनियरिंग द स्ट्रेंथ और इट्स फाइन आर्ट्स द स्ट्रेंथ. अगर फाइन आर्ट्स स्ट्रेंथ है, देयर आर वंडरफुल यूनिवर्सिटीज हु आर एक्सीलेंट इन फाइन आर्ट्स बट दे आर नॉट गुड इन इंजीनियरिंग. अगर मेरे को इंजीनियरिंग करना है तो मैं उस बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में नहीं जाऊँगा, बट आई विल गो टू ए यूनिवर्सिटी विच हैज़ गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंजीनियरिंग समथिंग विच यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली ऑल्सो. और आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो सीखने जा रहा हूँ मेरे को कौन सिखाएगा. सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज हु आर द फैकल्टीज, व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन लेवल्स, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंस लेवल. ऐसा नहीं है कि मेरा क्वालिफिकेशन बहुत है बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मेरे पास क्वालिफिकेशन होने से ही मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ. वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग ऑल्सो. तो देखना पड़ेगा फैकल्टी कौन है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनका एजुकेशन है, हाउ दे आर गोइंग टू make me grow. Third thing is they must see what is the infrastructural strength. For example, laboratories, workshops, because engineering based on practicals. You have to do it practically. And वो मेरा personal belief भी है, whatever you do, whether you do engineering or you do business management, you have to do it practically. Exactly. Because if you do it practically, your learning becomes complete. अदरवाइज ये बुक पढ़ के रट्टा मार के एग्जाम में वॉमिट कर देने से यू मे पास बट यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. दीज आर सर्टेन थिंग्स विच स्टूडेंट हैज़ टू लुक इनटू. एनवायरनमेंट कैसा है, अगर वो लड़का जाके पढ़ाई करेगा तो ही ऑल्सो हैज़ टू फील दैट हु विल बी माई सर्कल. देन one of the big things which I have faced in my entire career in the education industry is the biggest problem that the students say. I get a lot of students. I was in Hyderabad with a university called ICFA University, which is a very big university. Their Northeast students used to come. Their problems, they used to come with their problems. मेरे को ये प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज नहीं मालूम, लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, आप लैंग्वेज सीख लीजिए, सीखना ही पड़ेगा. आज मैं आसाम में हूँ 8 years. आई एम एबल टू, मैं अभी पेरेंट्स के साथ एसमीज में कम्युनिकेट कर सकता हूँ. आई एम एबल टू.
whatever is our language is a problem, you solve your language. Yeah. But the biggest problem they used to say, sir, food is a problem, which I could not help because they are not used to. So you need to see whether you will be comfortable in that university. वहाँ जाने के बाद अगर मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है, and that becomes a disturbance, तब पढ़ाई कैसे करोगे? Exactly. तो आपको देखना पड़ेगा. You have to go do a lot of research. Don't just jump into university. Do a lot of research. Make 1, 2, 3, 4, 5 options. Correct. 5 ऑप्शन में से आपके सूटिंग कौन सा है? आई एम नॉट सेइंग गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन, गो फॉर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, जो आपके लिए सूटेबल होगा, मोस्ट सूटेबल. गो फॉर दैट. स्टडीज आर ऑल डन, यू विल स्टडी एवरीवेयर, बट एवरीथिंग यू नीड टू सी से आप कंफर्टेबल हो कि नहीं. Those things play they play a big amount of instances where students have joined a big university but could not cope because of other external pressures. They have become failures. We don't want students to become failures. जो भी आप चूज करोगे, you must be successful. Exactly, correct. So अभी जैसे कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी मुझे जानना है कि टीचर्स का रोल कैसा होता है एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टूडेंट्स की तरफ. टीचर्स का रोल मैं बताना चाहूँगा कि today's teachers are successful teachers are the mentors which we call. यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते तो ज़रूर हैं, बट दे इंश्योर दैट स्टूडेंट इज़ लर्निंग. हाउ दे डू इट इज़ बाय हैंड होल्डिंग. उनका हाथ में पकड़ूंगा लेकिन उसको क्रॉस नहीं कराऊंगा. यू हैव टू क्रॉस योरसेल्फ, बट आई विल सपोर्ट यू. दैट्स हाउ द बॉन्डिंग बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट हैपन्स. एंड इफ द बॉन्डिंग हैपन्स, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो एज वेल एज द टीचर टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे मेरा वीकनेस आ रहा है, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ आ रहा है, हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. क्योंकि जब भी आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपको स्कोप नहीं मिलेगा कि मैं ये क्लास में फेल हो गया, नेक्स्ट क्लास में मेकअप कर लूँगा. वंस यू हैव फेल्ड मीन्स यू हैव लॉस्ट ए ईयर. तो वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज स्टूडेंट्स कम फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, दे कम फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंट्स. उनके लिए एक साल इम्पॉर्टेंट होता है. और मैं कहना चाहूँगा कि टीचर्स प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग अ करियर ऑफ अ स्टूडेंट. टीचर्स होना कैसा चाहिए? डेफिनेटली दे शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू टीच द स्टूडेंट. दे शुड बी एडिक्वेटली एक्सपीरियंस्ड इन हैंडलिंग क्लासेस. मैं एजुकेशन तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट एवरीबडी मे नॉट बी अ गुड टीचर. So people should have adequate experience in teaching. Then they should become more of a mentor than a teacher. Today's environment says people who are going to teach you, if you are not able to learn from them, then it's a failure of the teacher, not the student. I feel that students and teachers relation should be mentor-mentee relationship. वेरी ट्रू. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारे टीचर्स अपने कुछ, आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चंस व्हिच माइट बी ट्रिकी, मतलब आई हैव ऑल्सो फेस सिचुएशन जहाँ पे कुछ पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बारे में, जहाँ पे मार्क्स कम कर देते हैं वो लोग, एंड देन द स्टूडेंट्स ऑल्सो बिकम वेरी हाइपर और डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है वहाँ पे. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये तो आपने ऐसा प्रश्न किया है कि ये मैं जवाब देना चाहूँगा, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से कि ऐसा होगा क्यों? व्हाई? I don't Why know. should a teacher feel somebody is bad, somebody is good? And there is always some students who are favorite students. Some students are not favorite students. Exactly. It is there in every class. Everywhere. But why this happens is what we need to see. Now, if the teacher has teachers, I don't think that they will have certain grievances just like that. डेफिनेटली स्टूडेंट को बदमाशी तो करता होगा क्लास में. तो अगर वो बदमाशी करता है, आई फील दैट स्टूडेंट्स है, यंग है, बदमाशी तो करेगा ही. वी शुड टेक इट इन द राइट स्पिरिट, एंड अ गुड टीचर विल नॉट बी बायस्ड. अ गुड टीचर कैन नॉट बी बायस्ड. इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ बायसनेस, इट्स बिकॉज लाइक हाँ वो लड़का मेरे को ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा दे देता हूँ. बट आजकल के ज़माने में वो पॉसिबल नहीं है. आप मेरे को उसको बढ़ा के नंबर देंगे, इसको कम करके नंबर दे, वो पॉसिबल नहीं. एग्जाम के पहले क्या होता था, एग्जाम में मेरा फेवरेट स्टूडेंट 2-4 क्वेश्चन बता दिया, वो पॉसिबल नहीं. टुडे एवरीथिंग इज वाटर टाइट. यू कैन नॉट प्ले विद द स्टूडेंट्स कैरियर. अगर वो कोई करना चाहेगा, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में तो अलाउ करते ही नहीं, बिकॉज दे आर मॉनिटर थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ERP. वहाँ पे आप यू कैन नॉट प्ले विद देयर मार्क्स, बिकॉज दैट इज करेक्टेड बाई 3 people. Or some external person. Questions are said by somebody whom you don't even know.
सो देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशंस हमारे ज़माने में होते थे, आजकल बहुत ही कम है, नहीं है बोल सकते हैं, बट दीज आर नॉट समथिंग विच इज़ प्रिवेलेंट। ओके तो आजकल मतलब सब समान जैसे ही देखते ही है ऑलमोस्ट। आपके करियर में आपने एटलीस्ट देखा है आजकल, कैन यू से दैट? मतलब डिस्क्रिमिनेशन कम हो गया है? मेरे करियर में मैं बोलता हूँ, हाँ, आपका एक स्टोरी बताइए तो। हाँ, गिव यू माय एग्जांपल। आई यूज्ड टू ऑलवेज फील दैट द टीचर लव्स दैट फेलो मोर देन मी, एंड आई थिंक, आई डोंट नो ट्रू और नॉट, मैं सच है कि गलत है पता नहीं, मेरे को लगता था कि उसको ज़्यादा नंबर, मेरे से ज़्यादा नंबर इसलिए मिला क्योंकि वो टीचर का फेवरेट है। But it was not the teacher's fault, it was my fault. Okay. Because I had never taken the initiative and going and talking to him. मैं अगर क्लास में बैठता था, जो भी पढ़ाता था, लिखता था, चलाता था, बट दैट अदर फेलो हैड टेकन द इनिशिएटिव, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मेरे को ये थोड़ा सा दोबारा समझ। सो द टीचर फेल्ट कि ये लड़के में है इंटरेस्ट, मेरे को देख के सोचा होगा ये तो यूजलेस है, ऐसे ही। तो ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी कि मैं इसको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगा, मेरे को क्यों पढ़ेगा, मैंने पूछा नहीं। आई शुड एज अ स्टूडेंट आई शुड टेक द इनिशिएटिव, नॉट फील कि उसको ज़्यादा नंबर मिल रहा है बिकॉज ऑफ बायसनेस। नो, somebody who, if I see today that somebody is taking the initiative, आके मेरे को बोल रहा है सर ये देखना है, ये करना है, मेरे को लगेगा he is interested। अगर किसी में इंटरेस्ट है तो I will help। It is not a biasness, it's a sort of a help that is going। I think that's a human psychology, जैसे कि आपने बोला। मतलब मुझे ज़्यादा ओपन होना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चंस आस्क करना पड़ेगा, तभी तो टीचर मेरे को अटेंशन देगा। That's आप तो स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, स्कूल में आप फर्स्ट बेंच में बैठते थे या लास्ट बेंच में? मैं तो मिडिल में बैठती थी, बाद में मैं लास्ट बेंच में जाती थी हमेशा। तो फर्स्ट बेंच में जो बैठते थे, टीचर का नजर उनके ऊपर ज्यादा जाता था। Exactly। So why we avoid sitting in the first bench? Because टीचर देखते रहते थे ना। Because we are scared। Yeah। कि अगर प्रश्न पूछ देगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। Exactly। अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो सारा क्लास हंसेगा। Yeah। This is my fault। Yeah। If I am sitting in the first bench, टीचर आके मेरे को क्वेश्चन पूछा, क्या हो सकता है, या तो मैं करेक्ट आंसर दूंगा, नहीं तो गलत आंसर दूंगा। अगर करेक्ट आंसर दिया तो शाबाशी मिलेगी। हाँ। अगर गलत आंसर दिया तो मेरे को काट तो नहीं देगा, खा तो नहीं जाएगा, बट ही विल से तुमने ये गलत किया। व्हाट इज द लर्निंग? I am getting corrected। Exactly। I am learning through my mistakes। So let's take that initiative to make mistakes। Who has stopped us from making mistakes? Exactly। And if you don't make mistake, how will you learn? Correct। वैसे वो लास्ट बेंचर्स आजकल ज्यादा ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट बेंचर्स से, क्योंकि गाली खाते खाते ना क्या हो गया, उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ गया, क्योंकि लाइफ में आजकल के स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, वेरी वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो। और लास्ट बेंच में बैठ के दे लर्न मोर देन फर्स्ट बेंच में बैठ के क्या कर। राइट। That is something which I also agree with you। Yeah। Yes, today there is nothing called a first bench or last bench। Yeah। Every bench is a bench। एवरी बेंच, वेरी नाइस, टैगलाइन बन गया, पंच लाइन बन गया, एवरी बेंच इज अ बेंच। ओके, तो आप मेरे को एक बात बताइए कि जैसे कि आजकल कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो मानसिक संतुलन होता है, आई मीन द मेंटल हेल्थ, उसके लिए थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म भी इंट्रोड्यूस होने लगा है, जैसे कि मेडिटेशन करना या फिर कुछ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, आई मीन इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूरत हो गया है? इज इट द नीड ऑफ द आवर? I will not say it's the need of the hour. This has been a requirement throughout, all throughout, even early days also। It's not that आज का situation खराब है। See, students are under tremendous pressure always, not because of their studies, because the peer pressure, because of parental pressure, because of the teacher's pressure. Everybody's expectation level is very high, and to meet that expectation level, the student has to go through a lot of stress। Yeah। मेरे बाजू वाले घर के लड़के को 85 मिलेगा तो मेरे को 90 मिलना ही पड़ेगा। दिस इज प्रेशर। Yeah। साइकोलॉजिकली आप डायरेक्टली बोलो या ना बोलो, साइकोलॉजिकली इट्स अ प्रेशर। मेरे टीचर्स मेरे को सोचे तुमको इस बार 9 CGPA लाना ही है, तो मेरे को उसके लिए जो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम लूजिंग आउट टाइम विथ माई फ्रेंड्स, आई एम लूजिंग आउट टाइम विथ माई एक्सरसाइजेस। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग मी बॉग डाउन एंड स्टडी। उसमें क्या हो रहा है, मेरा फिजिकल वेलबींग ठीक नहीं रहा है। सो डेफिनेटली सम सॉर्ट ऑफ अ एडिशनल थिंग इज रिक्वायर्ड, विच यू सेड स्पिरिचुअलिज्म। आई विल नॉट से स्पिरिचुअलिज्म, आई विल से समथिंग विच विल लूजन अप यू अप। Do meditation। Yeah। Go to the gym, play football, play tennis, if possible go for a swimming। These are something which are stress busters।
Yes. स्ट्रेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन आने के टाइम में हम लोग के ऊपर स्ट्रेस बहुत बढ़ता ही है, बढ़ेगा ही, नेचुरल थिंग. आज मैं इतना साल से नौकरी कर रहा हूँ. टुडे व्हेन my campaign time is there, I'm always stressed because I need to see everything is falling in line. If there is one bit of this thing going from this side to other, I get stressed up. This is human psychology. We will all do that. But to ensure that this does not affect my health, both physical health and mental health, I should have some sort of a additional thing which you said, spiritualism. I will say do meditation, Yes. do some sports. Yeah. If required, go to a movie. Why not? Go spend some time on Facebook. Watch a YouTube. These are not bad things. Only thing, you need to have a proper time for this. Exactly. Do your time management properly, everything will fall in line. राइट. एक छोटा सा बात पूछती हूँ. स्टूडेंट्स का जो टाइम मैनेजमेंट होता है, आई एम स्पीकिंग अबाउट द पोस्ट हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के बारे में. तो आप क्या बोलेंगे कि हाउ टू मैनेज प्रॉपर टाइम एजुकेशन के साथ, रिक्रिएशन के साथ, मतलब कंप्लीट आप स्केड्यूल कैसे बनाएंगे एक स्टूडेंट का? देखिए, मैं एवरी स्टूडेंट का एक कॉमन स्केड्यूल नहीं हो सकता. Exactly. ईच स्टूडेंट विल हैव हिज ओन स्केड्यूल. यस. तो मैं कहूँगा कि आपको जितना पढ़ाई करने का टाइम है, विच ऐसे आपका सही कॉलेज 12 पास किया मतलब यू गेट इनटू कॉलेज. तो कॉलेज में टाइमिंग क्या होता है? मोस्टली 9 to 5 ही रहता है. उसमें 9:30 से किसी का 3 बजे तक क्लास है, किसी का 4 बजे तक क्लास है. क्लास अगर आप क्लास ठीक से अटेंड करोगे, इफ़ यू आर अटेंडिंग क्लास प्रॉपरली, विच आई फील माई स्टूडेंट्स आर डूइंग, उसके घर में जाके उसको रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ती. दैट्स अगेन I won't say waste of time. Some people should do it because they want to do it. But if you are attentive in the class and if you are regular, आप अगर क्लास में रेगुलर हो, तो आपको जो ये स्केड्यूल है 9 to 5, उसके अंदर आपका पढ़ाई हो जाना चाहिए. उसके बाद जो टाइम है, enjoy it. Yeah. Go for some additional things. Yes. Build up your physique. Do some gym. Yeah. And if you are passionate about singing, go and sing. Play the guitar. A lot of my students in the evening, you'll find one bunch of students playing football in the floodlight Wow. stadium. Because Assam में क्या जल्दी अंधेरा हो जाता है, especially in the winters. Yes. So we have made a provision for them to play football in the after darkness. So there are people playing football. There are some people who assemble in our common room. They are creating music for themselves. They're playing music. So whatever is your passion, you must follow your passion. Exactly. दैट्स ट्रू. अभी हम लोग थोड़ा काजीरंगा यूनिवर्सिटी के बारे में जैसे कि बात ही कर रहे थे कि आप लोगों का इतना सारा खेलने कूदने का स्पेस है, तो गिटार प्ले करते हैं. लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि जैसे कि आपका स्टूडेंट्स जो होता है वो कभी कभी रिलेशनशिप में भी पढ़ते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कभी कभी मतलब जैसे कि रिलेशनशिप में पढ़ गए तो एजुकेशन भी थोड़ा दिक्कत आ जाता है. आई मीन मेरा हिंदी इतना प्रॉपर नहीं, आई कैन एक्सप्लेन प्रॉपरली. मतलब रिलेशनशिप की वजह से एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली चला नहीं पाते हैं, तब थोड़ा मेंटल हेल्थ का इश्यूज भी हो जाता है. तो हम तो रिलेशनशिप बंद करो ये मत, जैसे कि हम लोगों का मम्मी पापा बोलता था पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, लड़का मत देखना, लड़की मत देखना, ऐसा बोलते थे हम लोगों के टाइम. हम लोग सुनते नहीं थे. हम लोग सुनते नहीं थे, तो इसीलिए. लेकिन आजकल तो डेफिनेटली और भी नहीं सुनते, सब अपनी आजकल पेरेंट्स बोलते भी नहीं है, जो करना है करो. लेकिन वो जो मेंटल हेल्थ का थोड़ा, अगर जैसे कि ब्रेकअप हो गया, एग्जाम का टाइम है, तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ के लिए आप लोगों का कैंपस में कोई काउंसलर वगैरह है कि नहीं, जैसे कि उन लोगों को हेल्प करने के लिए? या दिस इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट यू हैव ब्रॉट इन. एंड ये आपका सब जगह में मिलेगा. आप IIT IIM में भी जाओगे मिलेगा, और छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में भी जाओगे. These things are, young people are prone to this thing. Relationship तो बनेगा ही बनेगा, whether it's a final relationship or not doesn't matter. It's a temporary relationship, but होगा ही. You cannot stop it. तो उस समय में ब्रेकअप भी होगा, हाँ. झगड़ा ही होगा. फिर उसके बाद आपको लगेगा मैं दारू पीता हूँ. All this is going to affect your studies. Now, what is the right thing to do is to identify such cases in early stages and counsel them properly. For which every student, apart from his education, there is a mentor for every student. And he or she can go and confide with that mentor, which things don't go out into public. There is a dedicated students cell. यहाँ पे mostly these problems will come up in hostels. Hostels में ज़्यादा relationship Exactly. वगैरह होते हैं, और hostels में they cannot ventilate it out.
देयर इज अ नीड फॉर वेंटिलेशन. आप अगर वेंटिलेट नहीं करोगे तो ये स्ट्रेस बिल्डअप होकर आपका एंटायर करियर खत्म कर देगा. तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस एंड वी हैव पीपल. We have adequately trained people who are able to identify such things in early stages and have a regular discussion with the students, if required, also the parents. We have to involve the parents in this. Otherwise, student may go out of hand sometimes. So we need to handhold him. At that time, support की ज़रूरत है उसको ज़्यादा, और वो support देना चाहिए, और वो हम करते हैं. ओके तो ऐसा एक इंस्टेंस मुझे मिला था. आई मीन आई वॉज इन अ कन्वेंट स्कूल यहाँ पे. तो वहाँ का एक टीचर ने रिसेंटली मुझे बोला कि क्लास 6 या 7 का कोई लड़की है, वहाँ पे उसने ऐसे हाथ पूरा काट के रखा था. तो टीचर वॉज कंसर्न्ड उनका हाथ देख के. तो उन्होंने उसको डायरेक्टली बुलाया एंड देन शी आस्क्ड हर क्वेश्चंस कि तुमने ये क्यों किया. तो उसने बोला नहीं ऐसे कुछ हो गया था मेरे हाथ में. देन डेफिनेटली तो देख के किसी को भी मालूम पड़ ही जाएगा कि दैट वाज एन अटेम्प्ट टू सुसाइड. तो उन्होंने उनके पेरेंट को कॉल किया. शी वॉज नॉट रेडी टू स्पीक टू हर पेरेंट्स, बट देन द टीचर हैज़ टू डू दिट. जैसे कि आपने बोला पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट होना ही पड़ेगा. तो शी कॉल द पेरेंट एंड व्हेन द पेरेंट्स केम, द रिप्लाई ऑफ द पेरेंट्स वेर, our girl is properly groomed, she is doing well, you don't have to worry about her. ऐसे टीचर को बोल दिया. तो माई क्वेश्चन इज, आजकल के पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे को लेके. तो आप लोग अगर पॉइंट आउट भी करेंगे तो आप लोगों को ही गलत ठहराएंगे. तो हाउ टू कोप अप विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन एक इंस्टीट्यूशन को? See, today's parents, more than their overprotectiveness, they pamper their children. Exactly. Too much of pampering. Yes. ये जो क्लास 6 का स्टूडेंट आप बोला हाथ काट दिया, हाउ कैन शी डू दैट? Yes. Because she is used to getting things by just making a noise. And these are the things which is leading to, मेरे को नहीं मिलेगा, I will show them, because she knows if she cuts her hand, people will get tensed up. She is seeking attention. Now what she needs attention. Give her attention before she cuts her hand. She must be thinking, she will give indication. आपको बताएगा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, whatever जो possible है. She must be told कि this is what is your limit. You cannot go. Why you cannot go? You have to give reasons also. Because she is not used to. वो बचपन से use नहीं, उसका attitude different हो गया. Her attitude is I'll make a noise and things will come. Yes. Today I tell you, young kid of maybe 6-7 years old, वो जमीन में सो गया, मेरे को ये चाहिए, नहीं जाऊँगा. My God. You go to city center mall. Yes. You will find this happening very regularly. I visit places. I keep my eyes open because I love to watch people and their body language. What it is. Right. Because I since I am a counselor also, there's a lot of psychology involved into it. And I tell my wife, see, you are making a biggest mistake. You सो गया उसमें, आप you should not give him. But क्या करता है पेरेंट्स है, नहीं ठीक है दे दो, इस बार दे दो, आगे से नहीं दूंगा. ये इस बार जो दे दिया, आगे इसका डबल लेगा. Exactly. We need to have something called an expectation management. Not only adults, even child stage से they must know what they should expect and what they should get. Expectation management. पहले ही हम उसके हाथ में एक Apple iPhone दे दिया. Who is spoiling the kid? You are spoiling the kid. Yes. And then you are blaming the kid. उस बात नहीं सुनता है. It's not right. So there has to be sort of management into it. Expectation management has to be there. Exactly. मतलब ऐसे ही आप चुटकी बजाइए, आपको वो भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. स्विगी कर लीजिए, खाना दौड़ में आ जाता है. लेकिन हमारे ज़माने में, हम 90s के किड है. आई वॉज बॉर्न इन 1991. तो हम लोगों के टाइम में अगर मैं बहुत चिल्लाती थी ना, तो मम्मी बोलती थी यू हैव टू वेट टिल पूजा या बिहू, वहीं पे ही तुमको नया कपड़ा मिलेगा. Absolutely. Yes or no? Absolutely. लेकिन आजकल हम, आई ऑल्सो ब्लेम माई सेल्फ एज अ पेरेंट. आई ऑल्सो हैव अ 5-year-old चाइल्ड. हम भी क्या करते हैं कभी कभी, चलो आज शॉपिंग ही चलते हैं, तो दिस इज समथिंग लेविशनेस. लेकिन बच्चों को थोड़ा नीड सिखाना चाहिए हम लोगों को भी कि नहीं, आप दीजिए. You should give. You want to, as a parent, out of your love, you should give. But make him understand why you are giving. Yes. You are giving as a reward. You are giving for he's doing something good, Yes. not because he's shouting and you are giving. Yeah. इसको दिखाना पड़ेगा आपने अच्छा काम किया इसलिए आपको ये मिल रहा है. So you are getting a reward. So do good things, you get rewarded every time. But not that you will jump around and create a nonsense and then we will give. The only thing is that how you place it. Yes. आपको देना ही है.
अगर मैं सोचता हूँ मेरे चाइल्ड को मैं एक सैमसंग स्मार्टफोन दूंगा क्योंकि उसको चाहिए होगा, स्कूल में चाहिए होगा, दीजिए, बट एप्पल मत खरीद के दीजिए Yes. इनिशियल स्टेज में. वाई एप्पल? Yes. But you'll be surprised, kids are moving with iPhones today, Yes. the latest versions. मेरा हस्बैंड बोलते हैं, माई हस्बैंड इज ऑल्सो वर्किंग फॉर अ पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन गुवाहाटी. आई विल टेल यू आफ्टर अ पॉडकास्ट. सो ही टेल्स मी कि आजकल हम लोगों के ज़माने में क्या था, हम लोग एक बाइक के लिए कितना मम्मी पापा को बोलते थे एक बाइक दे दो, बाइक दे दो, बहुत टाइम के बाद मिलता था. बट नाउअडेज स्टूडेंट्स गो विथ मर्सिडीज, वो लोग बड़ा बड़ा SUV लेके स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं. तो हम लोग तब आई वॉज थिंकिंग कि ओ माई गॉड, हम लोग तो वॉक करके जाते थे, एक स्कूटी मिलना तो बहुत बड़ी बात है. तो नाउअडेज पेरेंट्स आर गिविंग देम SUVs, पेरेंट्स आर गिविंग देम मर्सिडीज, बड़ा बड़ा लग्जरी कार्स. Yeah. You'll find students, they're hardly class 12 pass outs. They have joined my university in the graduation program. They're coming with Audi, Mercedes-Benz, BMW. These are there. Kia and your Hyundai and all, everybody's. Bike अगर use कर रहे हैं तो you will be crazy though. If I see the bike, I'll get faint. बड़ा बड़ा जो different Oh my types God, of it looks like a racing bike. Yeah. Amazing sound they'll make, and they will make the whole world know that they're roaming in that bike. Exactly. Correct. मतलब I don't know, parents are giving them, लेकिन उनको वो जज्बा नहीं है कि मुझे अर्न करके ये मिलना चाहिए, because they are getting so easily. Everything is so easy Everything nowadays. is so easy. So what happens when they come into the what we call the life where actually your life begins? There you will find it difficult. You cannot adjust. So we must give education to the students, not only in the universities, but also at home. Yes, that's It's very important. point to be noted. Because education is not something which only a teacher can give you. Your parents are your biggest teachers. So right. So Yes. we must groom the child the way we want to groom, but ensure that he or she is also being told that this is not done. You cannot go. This is your limit. Do expectation management. Everything will fall in line. यस, करेक्ट. तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, इतने सारे पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो दूरियां है वो लोग हम कैसे सॉर्ट आउट करें. तो दूरियां जैसे कि वर्ड आ गया, तो अभी मुझे जानना है कि आजकल स्टूडेंट्स थोड़ा जब टीनेज एज क्रॉस कर लेते हैं तो पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा बॉन्डिंग कम हो जाता है उन लोगों का. तो ये सिचुएशन एक ना एक दिन तो मुझे भी आना है. आई वाज आल्सो वेरी रिबेलियस चाइल्ड व्हेन आई वाज अराउंड 14 to 15 years. कैसे कोप अप करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स बोथ टीनेज के साथ? कोप अप करना बहुत मुश्किल है. Yes. You don't allow these things to happen. Today's generation is Generation Z. They are completely different. Yes. Completely different. So I would not suggest that you try to force them into anything. But if you have a parent or a teacher has a good bonding, then there is that question of distance will not come. If the student is scared, other day I'll give you a small example. Yes. एक student और उसके parent आए मेरे पास. Sir, father came, mother came and the child. उन्होंने बोला सर इसको वो करना है, फिजियोथेरेपी करना है. मैं देखा स्टूडेंट्स फेस, आई न्यू देयर इज अ प्रॉब्लम. तो मैं उसको बोला ठीक है आपसे तो पूछूंगा नहीं, मैं स्टूडेंट से बात करूँ. तो स्टूडेंट्स को बोला कि वो बोला क्या करना है? सर फिजियोथेरेपी करना है. क्यों करना है? आंसर नहीं है, ही इज नॉट. फिर मतलब तुम मेरे को खुल के बोलो. सर मैं आपसे अकेला बात करना चाहता हूँ. सो द पेरेंट्स हैड टू मूव आउट. आई टोल्ड देम गो आउट. तो उनसे जब बात किया, आई कुड अंडरस्टैंड दैट दिस चाइल्ड इज क्लियरली हैविंग अ फीलिंग दैट आई एम बीइंग फोर्स्ड इनटू डूइंग इट एंड आई विल नॉट डू इट. मैं बोला तुम्हारा तो नंबर्स इसमें सब में अच्छा है, ये 2 सब्जेक्ट में खराब क्यों है? बोले जानबूझ के खराब किया है. क्यों? मेरे को बोला जो अच्छा करूंगा तो मेरे को फोर्स करेगा ये करने के लिए, तो मैं जानबूझ के खराब किया. क्यों? मेरे को पढ़ना नहीं है. क्यों नहीं पढ़ना है? नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये साइंस वाइंस. मतलब ही इज अ स्टूडेंट हु डज नॉट वांट टू डू साइंस. उसको ये बायोलॉजी से अच्छा नहीं लगता, ये फिजियोथेरेपी करने का इच्छा ही नहीं. उसको क्या इच्छा है? वो मैनेजमेंट करना चाहता है. इट्स अ गुड थिंग ही इज थिंकिंग. बट उस फादर ने होना चाहिए मेरे पास मेरा वो है मेडिकल यूनिट है, उस फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा. ये जो फोर्स है ये स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड रिबेलिंग.
मैं जानबूझ के एग्जाम में अच्छा खराब कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट रिबेलियन. क्लियर केस ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट द पेरेंट. उसमें क्या हो रहा है? पेरेंट को कुछ नहीं होगा, लड़का खराब होगा. ही विल रिबेल, ही विल नॉट स्कोर, ही विल नॉट स्टडी. आप उसको फिजियोथेरेपी में घुसा दोगे, वो पढ़ाई वढ़ाई करेगा नहीं, काम करेगा नहीं. ही विल बी अनसक्सेसफुल गाय. लेट अस अंडरस्टैंड. मेरे को उसको इट टुक मी अबाउट 45 मिनट्स टू टॉक टू हिम कि क्या करना चाहिए, बिकॉज ही वाज नॉट ओपनिंग अप. क्यों नहीं ओपनिंग अप? ही इज स्केयर्ड ऑफ हिज फादर. बिकॉज इज स्केयर्ड ऑफ हिज फादर ही कैन नॉट से नो. वो ना नहीं बोल सकता. तो ना नहीं बोलने के लिए आया है वो. मेरे को भी बोल रहा है मैं फिजियोथेरेपी करूंगा, मेरे को पता है वो नहीं कर पाएगा. तो डू वी फोर्स इन दिस सिचुएशन? वी शुड नॉट फोर्स. वी शुड अंडरस्टैंड उसका क्या लाइकिंग, उस लाइन पे उसका डालिए. then he will be able to do something. Then I had to counsel the parents for another 1 hour. And then they understood, then they realized. ऐसा मत करिए. फिर ये these are the reasons why people get into stress. आपको तो एक्सपेक्टेशन है ना, वो पास करके आएगा, इतना बड़ा करेगा, वो करेगा. वो स्ट्रेस वो नहीं ले पाएगा, और he is not made for that. So let us not force it. Correct. So this is the case of this year itself. So this sort of a derivation you have to do. You have to understand. So अगर आप अपने बच्चे को ही अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप कैसे करो? You are the person who should understand, not me. I'm an external person. मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ. मेरा अंडरस्टैंडिंग से कोई काम नहीं है. मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, वो मैं करता हूँ. As a career counselor, it is my responsibility to understand the strength of the student and advise him the right course. Yes, right. That's why I told him he will only do business management. It is my responsibility. आपको इसमें अगर आपको लगता है कि वो फिजियोथेरेपी करे, दिस इज व्हाट इज द आउटकम. अगर वो उसको बिजनेस मैनेजमेंट करे तो दिस इज व्हाट इज द आउटकम. आप चाहते क्या है, आप देख लीजिए. And they realized. It took a lot of time, but then they realized. And then finally this year he's doing BBA from my institution. Wow. And these are some difficult situations that come in. The father, if he's rigid, he doesn't listen to anybody. Then it becomes difficult for me to counsel him also. Very true. And it takes time. Yes. अभी थोड़ा लास्ट पार्ट में आ गए हैं. अभी मुझे थोड़ा बहुत जानना है कि जैसे कि हम लोग, जैसे कि मैंने पढ़ा, मास्टर्स किया सोशियोलॉजी, फिर MSW, ये सब सब्जेक्ट्स में मुझे तो जाना चाहिए था एक सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए, लेकिन मैं गई बिजनेस लाइन में, एंटरप्रेन्योरशिप. अभी कर रही हूँ खुद का मन मर्जी वाला पॉडकास्टिंग. तो जैसे कि खुद का चूज कर रही हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर चूजिंग अ करियर, और एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर ओन एक्सेलेंस? Education is important for your own excellence. Okay. Because career, it's for the sake of it you'll do. But ultimately, what is your goal? You should excel. Whether you be in service or whether you are entrepreneur, knowledge is important. You have to get that education. आपको अगर नौकरी करना है तो भी आपको एजुकेशन चाहिए. अगर आप सोच रहे हैं कि हम entrepreneur बनना है तो भी एजुकेशन चाहिए. Without that, nothing is going to happen. So you have to be adequately educated to handle anything. Okay. And to able to take that decision कि मेरे को सर्विस करना है या मैं entrepreneur बनना है. The way you have molded your life. Do you think that if you had no education, would you have been able to do it? It is not possible. Yes. Because you are educated, you could think. Your thinking power has come. You can think. Yeah, ये करना है कि ये करना है. किस पे ज़्यादा मेरे लिए ये अच्छा लग रहा है? Because I love to do that. Let me do that. That confidence will come if you are properly, adequately educated. Very true. Such a great answer. तो अभी मुझे जानना है कि गुवाहाटी या नॉर्थ ईस्ट का जो है, तो यहाँ पे सबसे फर्टाइल, मतलब बूमिंग, आप कौन सा सेगमेंट बोलेंगे कि जॉब के लिए भी सबसे बेस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नॉर्थ ईस्ट में जॉब प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है. नहीं है. If you are aspiring to excel in any field, you have to go out. Yes. It is unfortunate, but that's true. This area has not developed industrially. It may have a wonderful fertile land where cultivation can happen. Yes. And tea gardens, of course, but not much of job prospects or scope is there. So I always tell students, be open. Today, my students are not only working pan-India, they are working abroad also. Wow. There are students who have been able to secure higher education abroad and
Some of them have directly got placements abroad. But I say, if you want to do well, be open to be placed anywhere. You may be placed in Bombay. You are, for example, a student who's doing MBA finance with me. I cannot give him a good position in a place called Jorhat where there is nothing available. Exactly. I even cannot give him a great prospect in Guwahati. I'll give him a good job. He'll get into a bank, probably. What else? Is there any big financial institution here where he or she can? For that, you need to go to places like Bombay, Pune, Delhi, Bangalore, Hyderabad. Yes. These are the places where opportunities are open and you get well paid for that. In Guwahati, you can get a position, but you'll not get well paid. Then you'll say, my friend is earning double mine. So, you should be open for placements anywhere across India. But it's really sad that Northeast is not able to create proper positions for aspiring students. I think time is coming when it will happen in Northeast also. The initiatives that are being taken today, it is not going to be immediate, but in the next 5 to 10 years' time, I'm sure there will be a lot of industrialization that will happen. Exactly. Nowadays, we can see even the government is trying for the entrepreneurship, जैसे कि आत्मनिर्भर बनो, ये करो, वो करो. लेकिन when it comes to the government sector, when the entrepreneurs come up with various types of booming ideas, the government is not even able to give them a proper direction that you go there or go there. They Come to Kaziranga University. Yes. I will do that. Yes. We have a entrepreneurship cell Okay. where you come with your ideas. We will have experts who will listen to you, will handle and will guide you. This is what you can do next. Wow. And we will also be able to give you a diagram. This is what the small concept is. If you want to make it big, you need certain things called a finance, for which we will help you to tie up with some banks. Wow. We'll try. We try to create entrepreneurs more than we have a wonderful placement cell which is giving wonderful placements to students pan India. But I always tell students, why take placements? Give placements. Correct. That's a great point. Yes. Today India needs people who can provide placement. Don't depend on government. Government has its own limitations. Why we cannot take an initiative ourselves and say, well, I will take the responsibility. Today job is an issue. I will create 100 jobs. If 100 of you people think like that, just imagine how this entire region will become. Develop your own concept and we will help you. We'll help you with our guidance. We have people who are good in entrepreneurship. We have visiting faculties who come from IIMs and all. They will guide you. They will help you. And if there is any lacuna, they will tell you this is a problem where you can rectify. So support and help you'll get. Try to become entrepreneurs. Wow. You should be job givers, not job seekers. करेक्ट. एजुकेशन हम लोगों को चाहिए अपना फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए एंड देन वी नीड टू डू ऐसा बिजनेस कि ताकि 100 लोगों को एटलीस्ट हम लोग जॉब दे सके. Wonderful. I believe that such things is happening now in Northeast. Yes. And that's why I said next 5 to 10 years time you'll see a different world. जैसे कि कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल है यहाँ का सॉइल ब्रह्मपुत्र के पार, तो यहाँ पे हम लोगों का बिजनेस के लिए भी फर्टाइल बनाना होगा नॉर्थ ईस्ट को. और यही कल्टीवेशन से many things can come up. Yes. One of my students is trying to start something called making wines. Wow. And he thinks he can make wine from things like betel nut. Have you thought about it? Never. So Betel nut causes cancer. So that is what. That's what. You are not going to chew that betel. It's Yes. going to be pure wine. Yes. So there are things which people are thinking. And if they can implement, just imagine what the size of an industry will be if he's going to have a wine plant here. Wow. He's thinking about bringing wine from the what do you call, once you cut off that Vineyards. rice, Rice. Yes. whatever is left out from there. So a lot of things are there. People are experimenting, thinking about it. Some of the students are making wonderful apps. I have already developed 3 or 4 big entrepreneurs in my university. Wow. And one of them is eco delivery. One of them is that travel and tourism something. You are into travel? No, You're I'm not in travel. My clients travel. They keep their dogs at my place.
What is that called? Cuckoo's Paws and Claws. Yes. I wanted to contact you for such a long time. Okay, really? So the world is so small. You got the owner of the treasure. See, that's nearby only. I've seen your Videos. I checked it in the website, Okay. and I was told about you. Okay. Just now I was talking to someone. She told me about you. Okay. So Actually, we do dog fashion show every year. That is for the first time in entire Northeast. Nobody has done, and we are the one who are doing this since 2017. Where the owner and the dog walks on the ramp. oh, Yes. Do you train also? Yeah, we have trainers under us. They do home trainings as well as dog training here at my place. We give obedience training. So various types of things are oriented here. Yes. So once upon a time, there were some people who told me that Krishnakshi, you are just you did so much of education, and now you are just cleaning the pee and poop of a dog. That's your work. But now we are able to be the best in entire Northeast itself. People come from all over Northeast to keep dogs with us. I have heard about you Yes. because I was looking for keeping mine Yeah. with you for some time because we Yeah. wanted to travel out, Okay. but somehow we couldn't get connected. So anyways, we also got business here also. It was really nice talking to you. So how was your experience here? Well, I had to tell you very frankly, I just had a conversation with a friend. Yes. That's how it went to. If you remove these recording things, then Yeah. we had a conversation, and what That's was a fruitful conversation. There's a lot of Definitely. takeaways for me also. Yeah. So That's wonderful really nice. to meet you. Actually, It Same was here, great same to here, meet same you. here. Really nice. And definitely, if students are opting for a good educational facility, they want to have a good career options, they can definitely get in touch with you. Yes, of Yeah. course. They can always get in touch with me because students from all over, they keep calling me even in the middle of the night, Wow. and I have to answer that call because I Yes. do not know what is the stress level of the students. Why is he Correct. calling me? Somebody calling at 1 o'clock in the night is not normal. So definitely there's something. Correct. So my phone is always on, Wow. and I keep Yes. attending calls. And I So- just hope that after this podcast, आपका phone और भी बजे, थोड़ा और help मिल जाए सब बच्चों को. At least they might need help. तो maybe ये anytime. anytime. You yes. can communicate my numbers to anybody who is Yes. wanting to. I'm sure your followers may ask you for my numbers. You can provide my numbers to them. Sure. Absolutely not a problem. And if somebody is in a dilemma, what to do, not just in education, what to do in life, because I am myself a life coach. So Wow. I advise students, I give them training, I do a lot of soft skill programs for them. So there, anytime anybody wants to know something, he is always welcome. थैंक यू सो मच बॉबी रॉय. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप हम लोग फ्यूचर में और ऐसे कैरियर के ऊपर बात कर सके, स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर सके, और किसी ना किसी को तो एटलीस्ट हेल्प मिले. Yeah, that will be even if I can help one student out of this program, my life is made. डेफिनेटली. सो आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट सुन के, देख के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा. तो आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.